is the meaning of fraction? Fraction is a part of whole number. A part of whole number. Now what is the meaning of whole number? We all know that whole numbers are the numbers which are starting from 0 and up to infinity. That is 0 plus natural number are whole number. And it is denoted as W. That is 0, 1, 2 up to so on infinity. These are the whole number. तो whole number का जो एक part होता है उसको हम क्या कहते हैं? Fraction. Now let us understand it with the geometry. Suppose ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD. तो इसका जो हाफ पोर्शन है वो हमने कट कर दिया है. हाफ पार्ट हमने कट कर दिया इसको. तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/2. क्यों 1/2? क्योंकि एक ही पूरे कंप्लीट में हमने कंप्लीट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय जॉइनिंग अ मिडल लाइन. तो ये पूरा कंप्लीट होल स्क्वायर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब दो में से हमने एक कट कर दिया तो हमारे पास बचा कितना है ये. अब हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जितना है डिवाइड बाय टोटल. तो टोटल कितने हैं? 2 पार्ट्स. सो दैट्स व्हाई 1/2. इन अ सिमिलर वे अगर हम कहें इसी को ही कि हमने इसके 3 पार्ट्स को कलर कर दिया है, ऐसे करके हमने इसको कलर कर दिया है, तो हम कहेंगे कि पोर्शन ऑफ कलर्ड पार्ट ऑफ द स्क्वायर, then this will be 3/4. This is again a fraction. Now how is it possible? क्योंकि हमने कहा है कि कलर्ड पोर्शन निकालना है. अब टोटल उसके जो पोर्शन में कितने पार्ट्स हैं? 4. 1 2 3 4. 4 पोर्शन है. 4 में से 3 पोर्शन हमने कलर्ड कर दिए. अब जो अनकलर्ड पोर्शन है वो कितना है? 1. तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन, then that will be 3/4. But if they ask me that a portion of uncolored, then that will be 1/4. क्योंकि जो probable केस हमारे पास आया है वो 1 है, बाकी सारे तो कलर्ड हैं, एक अनकलर्ड है, तो वो 1 हो गया. अब टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स हैं इसमें? 4 है, तो 1/4. Now this is again a fraction. So this is all about the fraction. Now next we will discuss about the proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Now let us discuss it one by one. First of all, what is the meaning of proper fraction? So we have 3 parts, that is proper fraction, improper fraction, improper, and the third one is mixed fraction. तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं फ्रैक्शन के. Now first of all, what are the proper fraction? Proper fraction वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है. Now what is the meaning of numerator and denominator? If we consider 1/2 as a fraction, then here 1 is the numerator and 2 is the denominator. Now let us denote numerator as n, denominator as g. Now proper fraction are those fraction in which numerator is less than denominator. Now if we look at this example, then here numerator is 1, denominator is 2, so 1 is less than 2. That means this is a proper fraction. In a similar way, if we consider 3/4, then here numerator is 3, denominator is 4, so again it is a proper fraction. So these, when numerator is less than denominator, then that is called a proper fraction. These are 2 examples of
the term proper fraction. Now next is improper fraction. Now as the name suggests, proper fraction and improper fraction. Improper fraction is the opposite of proper fraction. Improper fraction is those numbers in which denominator is less than numerator. If we consider 9 by 4, then here 9 is greater than 4. This is an improper fraction because here 4 is less than 9, that is denominator is less than numerator. Then that case is termed as improper fraction. So here when denominator is less than न्यूमरेटर, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो लेस हो जाए न्यूमरेटर से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अगर हम इसी टर्म की बात करें 9 by 4, then 9 by 4 can also be written like 2:1 by 4. Now how can we write it? क्योंकि हमें पता है कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो हम डिनोमिनेटर को कंप्लीटली प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो 4 to the 8 1 रिमाइंडर हो गया. तो इसमें क्या करते हैं, जो आंसर होता है, जो क्वेश्चन टैग इसका, उसको हम सेंटर में लिख देंगे 2, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो ये 4 है जो डिवाइजर है उसको हम नीचे लिख देते हैं. तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इस टर्म को हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इसकी? 2:1 by 4. So this symbolic form is termed as mixed fraction, क्योंकि इसमें सभी तरह के फ्रैक्शंस आ गए हैं, 1 by 4, 2. तो इस तरह के जो फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. This is all about the types of fraction. Now next is how we convert improper fraction to mixed fraction. Suppose we had a improper fraction 9 by 4. Then it can be converted into mixed fraction because we know that it can be sorted out further. Because हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें. तो 4 to the 8 1 आ गया. अब हमारा जो आंसर आया है उसको मिडिल में रखेंगे. 2 is written over here, remainder will be on the upper one and here will be the denominator. 4 को हम नीचे लिखेंगे, 1 को ऊपर, और जो हमारा आंसर आया उसको सेंटर में. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. और ये हमारा क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. इन अ सिमिलर क्राइटेरिया अगर हम कहें 13 by 3, तो 13 by 3 कैन बी रिटन लाइक 3 4 the 12, 1 remainder. So this can also be written as 4:1 by 3. This is a mixed fraction, and this is a improper fraction. So in this way we can convert improper fraction into mixed fraction. Now let us discuss about the operation on the various fraction. Now addition. Addition of fractions. Suppose let us consider an example 3 by 4 plus 2 by 4. Now here numerator is less than denominator. Now this is the first type of fraction, that is proper fraction. Now because हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो we simply add the numerator. 3 plus 2 upon 4, that will be 5 upon 4. Now this is the addition of two number. तो जब हमारे पास एक चीज जब दो
प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। नाउ 3/5 प्लस 7/9, तो इसमें सेम हमारे पास अगेन ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, पर क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे। 9×5 = 45, नाउ 9×3 = 27 प्लस 7×5 = 35, तो ये हमारा आ गया 62/45। Now numerator is greater than denominator. This is a case of improper fraction. That means जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Now we will add improper fractions. Two improper numbers, 9/2, 7/2. Then that will be 9 plus 7 will be 16/2, which is 8. Now here 8 is written as 8/1. Now here numerator is again greater than denominator. This is an improper number because numerator is greater than denominator. Then this is a proper number, 7/2. Numerator is greater than denominator. This is again a proper number. Now proper दो प्रॉपर नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया प्रॉपर में। अगर हम करें 9/16 प्लस 4/16, then that will be, here numerator is less than denominator. This is a case of improper fractions. तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, that will be 13/16. तो that will be a improper numbers को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर जो आया वो किस, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दिस इज अगेन अ इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो दो इम्प्रॉपर नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो भी इम्प्रॉपर आएगा। नाउ सिमिलरली इफ वी कंसीडर 2/3 प्लस 4/5, then here numerator is less than denominator. दोनों नंबर जो है वो इम्प्रॉपर नंबर्स हैं, पर इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे। 5 to 10 plus 12 upon 15. Now that will be 12 plus 10 is 22/15. Now here numerator is greater than denominator. This is a case of proper fraction. So जब हम दो improper numbers को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर नंबर आ जाता है। Now 2:1/3 plus 3:1/3, जब हम दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, 3 to the 6 plus 1 7/3, 3 to the 9 plus 1 10/3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 17/3। Now 17/3, this is a case of numerator is greater than denominator, which is a case of improper fraction again. So इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो that will be 5×3 the 15, 2/3. So this can also be written in the form of mixed fraction. If we subtract two fractions, then 6/4 minus 3/4, this is a numerator is greater than denominator, improper fraction. Numerator is less than denominator, so ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब दो फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो that will be, result will be also a fraction. Similarly 6/5 minus 3/5, this will be 3/5. This is also a fraction. 6/4 minus 1/5. Then here will be 6/5 the 30 minus 4/1 the 4 upon 4/5 the 20. Here will be 30 minus 4, 26 upon 20. This is again a fraction.
नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो 13/10 आ गया, 13 to the 26, 10 to the 20. So this is also a fraction. Now if we multiply two fractions, multiplication of two fractions, then 2/5 multiply by 3/7, this will be numerator को numerator के साथ multiply करेंगे, 2 3 6, 5 into 7 will be 35. 2/5 multiply by 2/5, 2 into 2 will be 4, 5 into 5 will be 25. So इस तरह से दो fractions को multiply करेंगे तो हमें फिर fraction ही मिलेगा. Now division, जब हम दो fractions को divide करेंगे 2/5 divide by 7/3, तो इस केस में क्या आएगा 2/5, तो ये जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, 3 जो है अब ये डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम इसको उल्टा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/7, 3 to the 6 upon 7 5 the 35. This is all about the operations on the two or more than two fractions. Next is simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म इज, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 16/18, तो हम इसको कटिंग करके लिख सकते हैं 2 into 8 upon 2 into 9, कैंसिल हो गया, 2 कॉमन है तो हमारे पास आ गया 8/9, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सिमिलरली 20/25, उनके बीच में दो जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको कट कर देना, 4 5 the 20, 5 5 the 25, 5 कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 4/5, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल. फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर 6.4, नाउ हियर दिस इज अ डेसिमल नंबर, इट कैन बी रिटन एज, यहाँ किसी पॉइंट के बाद या बीच में कोई पॉइंट होएगा किसी नंबर में, then that number is called a decimal number. For example 0.64, this is also a decimal number, क्योंकि इस नंबर के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो जिस नंबर के बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है that number is the decimal number. Now this decimal number can be represented in the fraction form also. These two are interconnected with each other. For example 6.4 can be written like 64/10, 0.64 can be written like 64 upon 100. So these two are the fractions. So decimal is equal to fraction. Decimal can be represented as fraction. So ये दोनों जो है interconnect है. Now multiplication of two decimal number. जब हम दो नंबर्स की जो डेसिमल्स नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, नाउ हियर हमारे पास एक तो मेथड है कि हम डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट का 1 और एक डिजिट है तो 0. सिमिलरली 12/10, तो ये हो गया 12 into 12 144 upon 10 into 10 100. हमें पता है कि दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब ये जो फ्रैक्शन है अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारा 144 है. अब ये दो जीरोस हैं, दो जीरो पीछे से दो नंबर स्टार्ट करेंगे और ये 1 है तो 1 का लगा डेसिमल, सो दिस इज 1.44 और हम इसको रीड भी ऐसे करेंगे 1.44 इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइक 1.44. दिस इज नॉट 44, दिस इज 44. सो जब हम दो डेसिमल्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी डेसिमल नंबर में आएगा. नाउ सेकंड मेथड इज हम इसको एज इट इज ही मल्टीप्लाई करेंगे. 2 to the 4, 2 1 the 2 multiply 2 1 the 2, 1 1 the 1,
441 दो डिजिट्स हैं, 1 2 दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 1.44. So there are two methods by which we can multiply the two decimal numbers. Now multiply by whole number. For example, 3.6 multiply by 6, then that will be 6 6 तो 36, 3 कैरी किया, 6 3 18 प्लस 3 21. अब एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 21.6. सिमिलरली अगर हम 3.6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज अ नंबर कंटेनिंग 0. तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता 3.6 कैन बी रिटन लाइक 36/10, क्योंकि पॉइंट का एक आ गया और एक नॉन नंबर है तो पीछे 0 लगी, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 36. दैट मीन्स हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, 10 है, जीरोस है, तो हम डायरेक्टली इसको 36 लिख सकते हैं. ऐसे ही हमारा अगर 0.36 है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी गेट 36. सिमिलरली 0.036 है, उसको अगर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस अगेन पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 जीरोस आएंगी और ये हमारा 1000 है, तो हम इसको डायरेक्टली 36 लिख सकते हैं. सो इस तरह अगर हमारे पास कोई 1 के साथ 0 नंबर्स हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंगली के डेसिमल की पोजीशन कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल नंबर हम कैसे कंपेयर करेंगे कि दो डेसिमल नंबर में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0.5 और 0.05 की बात करें तो हमारा पहला जो डिजिट है वो 0 है, दोनों में 0 है. सेकेंड इज 5, डेसिमल के बाद दूसरा नंबर हमारा क्या आ रहा है 5, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो 5 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर. सिमिलरली 0.01 और 0.001, अगेन 0 इज अ फर्स्ट नंबर, डेसिमल के बाद 0 है तो यहाँ पे भी 0, अगला 1 है यहाँ पे 0 है. This is of course greater number. So in this method we can easily find out which number among the two or more than 2 is greater by considering the decimal the digits which are present after the decimals. That's all.